مہندی لگانا اور پھر فیشل کروانا، طرح طرح کے فیشلز آج کل ظاہر ہیں، اور سیلونز میں جانا چاند رات کو خصوصی طور پہ اتنا رش ہوتا ہے سیلونز میں کہ خدا کی پناہ ہے۔ چاند رات سے ایک رات پہلے میں بھی گئی تھی سیلون اور میں نے بھی فیشل کروایا تھا، اور فیشل کے بعد کیا حال ہوا یہ میں ڈرماٹولوجسٹ سے ہی بات کرتی ہوں۔ اور پھر مہندی بھی ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے بھی لگائی، عید پہ سب لگاتے ہیں مہندی۔ اب مہندی لگی تو بہت اچھی تھی، عید بھی بہت اچھی گزر گئی، ہاتھ بھی بہت پیارے اچھے، فوٹوز بھی بہت اچھی آئیں، لیکن جب وہ مہندی اتر رہی ہے تو وہ اس قدر اریٹیٹنگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ اسکن اتنی کھردری، اتنی مطلب عجیب سی ہو گئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کس طرح سے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے، پہچاننا کیسے ہے کہ چیزیں اچھی ہیں، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ایک ماہر ڈرماٹولوجسٹ ہی ہمیں بتا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے آج خاص طور پہ مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے جی جناب ڈاکٹر کمل جواد صاحبہ کو۔ ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ کیسی ہیں آپ؟ کیسی گزری؟ ڈاکٹر کمل نے بھی مہندی لگائی ہوئی ہے؟ میں نے بھی مہندی لگائی ہے بیکاز مجھے مہندی بہت پسند ہے نا؟ ہاں۔ تو ڈاکٹر کمل مہندی تو لگائی ہم نے، لیکن جب اتر رہی ہے تو پھر وہ پوری وہ جو اسکن کی وہ جو لیئر ہوتی ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ اتر رہی ہے۔ ایسے یہ ہاتھوں کا بہت مطلب وہ لگانے والا جو فیس جتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، اترنے والا اتنا ہی خراب ہوتا ہے۔ فوٹوز تو بہت اچھے ہیں ہمارے، بہت اچھے آتے ہیں، شوق بھی پورے ہو جاتے ہیں ہمارے۔ لیکن یہ دیکھیں مہندی ایکچولی کیا ہے، مہندی آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ کبھی بچپن میں اپنے لگایا کرتے تھے، اس میں مہندی آنے کے بعد 7-8 دن تک آپ کی مہندی جاتی نہیں تھی اور بہت سلو اترتی تھی، آپ کی اسکن کو بھی خراب نہیں کرتی تھی۔ بڑا پیارا اورنج سا کلر آتا تھا۔ ہاں جی، اس میں نا سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ یہ ہوتی تھی کہ کلر کس کا کتنا اچھا آیا ہے۔ لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے کلر کوئی میٹر ہی نہیں کرتا، آپ لگائیں 5 منٹ کے بعد آپ کے ہاتھوں پہ کلر آ جاتا ہے۔ 5 منٹ بھی شاید میں زیادہ کہہ رہی ہوں۔ سو ان مہندی میں اور ابھی کی مہندی میں ڈیفینیٹلی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگین اس میں پھر وہ پرابلم یہی آ جاتی ہے کہ اس مہندی میں کیمیکلز نہیں ہو سکتے، وہ ایک پیور مہندی ہوتی تھی، بٹ ابھی جو مہندی ہیں جتنی بھی وہ سب کیمیکل والی ہیں۔ کلر زیادہ لانے کے لیے، کلر فوری طور پہ آنے کے لیے اس میں ڈفرینٹ کیمیکلز ملائے جاتے ہیں، اور وہ کیمیکلز کلر تو لے آتے ہیں، مگر جیسے ابھی ہم پرابلم کا شکار ہیں کہ مہندی جب اتر رہی ہے تو ہماری اسکن خراب ہو رہی ہے، اور اسکن کی جو لیئر ہے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہمیں بھی اریٹیشن ہوتی ہے، ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں اسے باقاعدہ چھیل رہے ہوتے ہیں نا، کھردرے ہو جاتے ہیں، آپ جتنا مرضی موئسچرائز کر لیں ان ہاتھوں کو، لیکن آپ کے ہاتھ رہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی یہ جو بلیچ اور پالشنگ وغیرہ لگائی جاتی ہے فیس پہ جو سیلونز میں یوز ہوتی ہے، آپ اسے لے کے بہت ہارڈ نہ بنائیں، بٹ نارملی سا اسے کر کے اور آپ اسے اپنے ہاتھوں پر لگا لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ایک لیئر ہوتی ہے نا جو ہمیں اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ لیئر ریموو ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں انڈائریکٹلی کہ اس سے آپ کے اسکن کی لیئر ریموو ہو سکتی ہے، وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے، اور وہ آپ کی بلیچ، وہ بلیچ ہوا، پالشر ہوا، دونوں یہ کام کرتی ہیں، اور وہ آپ کی اسکن کو جو آپ فیس پہ لگاتی ہیں کتنا نقصان دہ ہوتی ہے۔ سو ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ وہ جو چاند رات سے ایک رات پہلے میں نے فیشل کروایا تھا نا، میں بہت کم، میں فیشل وغیرہ یہ سب ٹائم نہیں ہوتا، ویسے بھی میں نہیں، تو وہ سب جا رہے، بھابیاں جا رہی تھی، میں نے سوچا چلو میں بھی چلی جاتی ہوں۔ وقتی طور پہ تو سیلون میں بیٹھے ہوئے اتنا گلو آیا، سب کہہ رہے تھے واو کتنا چینج اچھا ہوا۔ وہ ویری نیکسٹ ڈے جب پھر میری اسکن یوں ریڈ اور اریٹیٹڈ اور بہت زیادہ ڈرائی اور آپ کو فیل ہو بیکاز آف دا بلیچ اور پالشر، میں اسی لیے ہمیشہ منع کرتی ہوں کہ یہ چیزیں نہ یوز کریں، کیونکہ وہ آپ کی اسکن کی لیئر کو ہٹا دیتی ہے، آپ کو نہیں پتا اس کے بعد کیا پریکاشنز آپ نے لینے ہیں نا، تو بہتر یہ ہے کہ فیس پہ اسے نہ استعمال کریں۔ بٹ اس مہندی کو ریموو کرنے کے لیے جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بلیچ لگائیں اپنے ہاتھوں پر، اسے 5 سے 10 منٹ تک لگا رہنے دیں، بہت زیادہ بھی نہ کریں، برن نہ کروا لیں ہاتھوں پہ، اور پھر اس کے بعد اسے ریموو کرنے کے بعد آپ اپنی اسکن کو اچھے سے موئسچرائز کریں، تو پروبیبلی وہ جو آپ کو 1-1.5 ہفتے میں جا کے اترنی ہے مہندی، تنگ کرے گی آپ کو، وہ آپ کو 2-3 دن میں ہی وہاں سے ریموو ہو جاتی ہے۔ اس کیمیکل والی مہندی کی وجہ سے بہت خطرناک ری ایکشن بھی ہوتے ہیں، جو کلر تو لے آتی ہے، بٹ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیزائن بنوایا ہے، آپ بلیو کریں مدیحہ، میرے پاس نیولی ویڈ بچیاں بھی آئی ہیں ایسی کہ وہ مہندی لگا کے وہ پوری کی پوری مہندی ان کے ہاتھوں پہ پیسٹ ہو گئی ہے اسی طریقے سے، یعنی کہ وہ ان کی اسکن کی ڈیپر لیئر میں پیسٹ ہو گئی ہے، اس نے ری ایکشن اپنا دکھایا ہے، اور وہ ہاتھ پورا ایسا ہوتا ہے جیسے برن ہو گیا ہے۔ اور کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں انسٹیڈ آف ٹریٹمنٹ ان کا 6-6 مہینے تک مہندی کا نشان نہیں جاتا، وہ اسی طریقے سے ہاتھوں پہ چھپے رہتے ہیں۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ جو فیشل وغیرہ کرواتی ہیں یا کچھ ٹریٹمنٹس کروانے کے فوراً بعد پھر مہندی بھی لگوا لیتی ہیں؟ دیکھیں اس کا یہ بھی کاز ہو سکتا ہے کہ مینیکیور پیڈیکیور کروایا آپ نے امیڈیٹلی اور امیڈیٹلی آپ نے مہندی لگوا لی، یہ بھی ایک کاز ہو سکتا ہے، بٹ جو موسٹ آف دا ٹائم کاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس مہندی کا کیمیکل، وہ جو کیمیکل کلر کے لیے یوز ہوتا ہے کہ کلر تیز آئے، جلدی آ جائے،
उसके लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो इतना हार्श होता है सम टाइम कि वो आपके हाथों पर रिएक्शन कर देता है। और अब ऐसा होता है कि बहुत सारी मेहंदी ऐसी, मैं देखती हूँ कि अगर 50% लोगों ने मेहंदी लगाई है तो उसमें से 25% लोगों को रिएक्शन होता है। इतना रेशो उसका बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने लगा है। हमेशा से मेहंदी का इंतखाब सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपने रैपिडली कलर ले आना है, लेकिन उस कलर के चक्करों में आप किसी और मुसीबत में ही ना पड़ जाएं। तो मेहंदी के रिएक्शन पे मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोस बनाई थी, काफ़ी प्रोग्राम्स में बताया भी है कि ये जो रैपिड कलर लाने वाली मेहंदी होती हैं ये आपकी स्किन को ख़राब कर सकती हैं। सो अवॉइड कीजिए मेहंदी को। हमेशा किसी एक कॉर्नर पे हाथ के या कहीं भी आप उसे लगा के चेक कर लें। 15 मिनट्स उसे लगा रहने दें। कलर तो उसमें आ ही जाना है, लेकिन देखें कहीं इरिटेशन तो नहीं हो रही, आपकी स्किन पे कोई बर्न तो नहीं हो रहा, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इचिंग तो नहीं स्टार्ट हो गई है, रेडनेस तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो उस मेहंदी को ना लगाएं। सही। तो बेहतर है कि मेहंदी लगाने से पहले चेक कीजिए, और अगर खुदा ना ख्वास्ता हो जाता है रिएक्शन, आपने नहीं चेक किया या इंस्टेंट चेक किया फिर भी हो गया है, तो इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, बिकॉज ये एक इमीडिएट लेने वाला एक्शन होता है। अदरवाइज आपके हाथों की स्किन या पाँवों की स्किन परमानेंटली बर्न हो सकती है। ठीक है। फिर मेहंदी को तो कहा जाता है कि कुदरती है। बचपन में याद होगा मेहंदी का रंग ज़्यादा बेहतर करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे कि चीनी पत्ती, कावा ऐड करते थे, उससे कलर जो है उसका मज़ीद इनहैंस हो जाता था। अब तो वो मेहंदी एक तो उस रॉ फॉर्म में आती नहीं है, कोन में, और डिफरेंट तरह इंजेक्शंस भी। अब तो मैंने देखा है, मैं मार्केट गई तो वहाँ पे वो इंजेक्शन सिरिंज होती है जैसे टीका लगाते हैं, हाँ जी, उससे मेहंदी लगा रहे थे। मैंने कहा क्या, और बड़ी महारत से लगाते हैं। लाइक मेरे लिए भी बड़ा स्ट्रेंज है जब मैं देखती हूँ लोगों, मैंने नहीं लगवाई वैसे कभी आज तक, बट देखा ही है। बड़ा स्ट्रेंज होता है। और फिर कलरफुल उसमें मेहंदी होती है ना, लाइक आप उसमें चाहें जितना ग्लिटर करवाएं, उसमें आपने पर्ल्स लगवाएं। आपको पता है जितनी आ गई है जिद्दत आ गई है चीज़ों में, तो लोग मजीद से मजीद मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। इंजेक्शन वाली मेहंदी भी इमीडिएट कलर देती है, सो बी केयरफुल। इंजेक्शन वाली मेहंदी हो, कोन वाली मेहंदी हो, या इवन वो जो रॉ फॉर्म में मेहंदी मिल रही है आजकल बालों के लिए, आपको पता है डाई करने के लिए काफ़ी लोग, अभी भी पुरानी जो ख़वातीन है वो यूज़ करती हैं उस मेहंदी को, कि वो मेहंदी से हमारा जो कलर आएगा वो ज़्यादा नेचुरल है, प्लस उसमें उनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, बट उसमें भी केमिकल शामिल होता है। बिल्कुल केमिकल होता है। आपको अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों से। आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और उसके बाद उसे यूज़ करें। आपने देखना है कि उसमें केमिकल कितना है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि रिएक्शन करवा सकता है। अगेन इसका सबसे आसान तरीका ये, क्योंकि हर बंदा उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के नहीं लेगा, मुझे पता है। आसान तरीका वही है, नहीं आता है आपको, बिल्कुल ऐसे ही है कि लिखे हुए तो होते हैं, लेकिन रिएक्शन किससे होगा किससे नहीं होगा नहीं पता चलता। तो आसान सा तरीका वही जो मैंने पहले बताया है कि आप उसे लगा के 15-20 मिनट्स अपनी स्किन पर चेक कर लें, अपने यहाँ एल्बो वाली जगह पे लगा के छोड़ देना, कि खुदा ना खास्ता कुछ होगा भी तो वो एक हिडन एरिया पे रहेगा ना, एक्सपोज्ड एरिया पे नहीं रहेगा, और थोड़े एरिया पर होगा, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। बालों की मेहंदी के लिए भी इवन अवॉइड करना चाहिए आपको। अच्छा, हाँ। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि हेयर कलर्स की बजाय अब मेहंदी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि मैं एक रिसर्च अभी खबर पढ़ी थी और मुझे बड़ा डर लगा कि हेयर कलर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस की रेशो वो बढ़ रही है। यस, वो, और ये हेयर डाई की वजह से। वो देखिए ना आप कितना फ्रीक्वेंटली अब हेयर डाई होने करना लगा पड़ता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली। हर हफ्ते आपको रूट टचेस तो हर एवरी वीक आपको करने पड़ते हैं, बिकॉज आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर का इशू इतना ज्यादा है। ग्रेइंग ऑफ हेयर का मेन कॉज आप देखें बायोटिन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में अगर हो रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसीज हो रही हैं, ये सब लीड करती हैं कि ये ग्रेइंग ऑफ हेयर को बढ़ा दें। दूसरा, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आप देख रहे हैं छोटे बच्चों में भी, इवन यंगस्टर्स में भी इवन आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज, क्योंकि ना हमारी डाइट प्रॉपर है, ना हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमें जंक खाना है, हमने अगेन फिर सब कहते हैं कि घुमा फिरा के ये खाने पीने पे ले आती है, बट क्या करें, कॉज तो वहीं से डेवलप हो रहा है ना। आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा आप देखें कहाँ से आ रहा है, बिकॉज आपकी डाइट में डेफिशिएंसीज हैं। जिंक का ना होना आपके बालों को अर्ली प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की तरफ लेके जाता है। बायोटिन का ना होना, विटामिन B12 का ना होना, विटामिन डी का ना होना, ये सब वो इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो कि आपको अर्ली एज में ही ग्रेइंग ऑफ हेयर करवा देते हैं। ऑल्दो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेइंग ऑफ हेयर होनी है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में इन सब चीजों की डेफिशिएंसी है तो वो ज्यादा होगी, तो फिर आपके ग्रे हेयर्स डेफिनेटली ज्यादा होंगे। ठीक है, बजाय कि इसके वो, मैं आप सही कह रही हैं, मुझे वो अपने विटामिन्स चेक करवाने चाहिए। Exactly. देखिए अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई 50 साल के बूढ़े तो नहीं हो गए कि हम लोगों की ग्रेइंग ऑफ हेयर अब अल्टीमेट है, होनी है।
हो जाए, कोई इसमें वो नहीं है, बट ये इतना फ्रीक्वेंट होना, डेफिनेटली देयर इज सम कॉज। हम उन कॉजेस को भी तो देखें ना, उन्हें कवर कर लें। माइट भी कि वो जो हमें एवरी वीक रूट टचिंग करनी पड़ती है, शायद वो मंथली करनी पड़ जाए, इतना वो उसको प्रोलॉन्ग कर दे अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हम खत्म कर दें तो। अच्छा, मेहंदी में ऐसे केमिकल्स होते कौन से हैं जो कि आपके लिए एलर्जी का बायस बनते हैं या आपकी स्किन को ख़राब कर देते हैं? देखिए, इसमें हमारे पास 2-3 हार्श केमिकल्स होते हैं। उसमें एग्जैक्टली जो केमिकल, जो उसके कलर देने वाला केमिकल होता है, उसकी वजह से आपको रिएक्शन आता है, जिसकी वजह से मेहंदी का कलर रेड होता है, राइट? वो केमिकल आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, क्योंकि वो बेसिकली स्किन के लिए होता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि ये जो दुपट्टा डाई करने वाले या कपड़े डाई करने के लिए जो कलर यूज़ किया जाता है, इसी से मिलता जुलता कलर मेहंदी के केमिकल में डाला जाता है, मेहंदी में डाला जाता है, सॉरी। और वो चीज़ जो कि कपड़ों को कलर करने के लिए यूज़ हो रही है, अगर वो आपकी स्किन पर टच करती है तो आप देखें उसका क्या रिएक्शन होना है। वो हर स्किन बर्दाश्त नहीं कर पाती जी। किसी किसी स्किन में वो टॉलरेंस आ जाती है और किसी किसी स्किन में उसका रिएक्शन सामने आ जाता है। सो अगर वो रिएक्शन अपना दिखा देता है तो वो आपकी स्किन के लिए ना सिर्फ नुकसानदा होता है, बल्कि वो आपको साथ में शॉक में या फिर कोई किसी और सिवियरिटी की तरफ भी लेके जा सकता है, क्योंकि बॉडी जब किसी भी रिएक्शन का शिकार होती है तो उससे ना सिर्फ आपका वो एरिया इफेक्टेड होता है, बल्कि ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट होता है, ओवरऑल भी होता है। तो यही मैं आपसे पूछने वाली थी, अगर आप फेशियल करवाते हैं या बॉडी का कोई भी, आप मैनिक्योर पेडिक्योर, चलो पेडिक्योर की तो समझ आती है कि आपने हाथों पे करवाया और मैनिक्योर, तो लेकिन फेशियल करवाने के बाद फेस पे हो रहा है ना, तो अगर आप मेहंदी लगवाते हैं हाथों पे या पैरों पे, तो क्या वो भी एलर्जी का बायस बन सकता है? नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भी तो इतने केमिकल्स यूज हो रहे हैं आपकी स्किन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बट वो ये कि वो ऐसा नहीं होता कि वो पेनिट्रेट होके आपके हैंड्स तक आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होता। मैनिक्योर करवा रहे हैं तो और आप डायरेक्टली उस पर लगवा रहे हैं मेहंदी, तो रिएक्शन हो सकता है। पेडिक्योर करवा रहे हैं, वहाँ मेहंदी लगवा रहे हैं, तो रिएक्शन हो सकता है। बट आपके कोई भी फेशियल करवाने से, चाहे वो हाइड्रा फेशियल हो, चाहे वो सैलून फेशियल हो, उसको करवाने से आपके हाथ पांवों पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? जो कुछ हो रहा है वो टॉपिकली हो रहा है, हाँ। उसी लोकलाइज्ड एरिया पर हो रहा है, उसका अंदर आपकी स्किन के साथ या आपके ब्लड के साथ लेना देना कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर रिएक्शन डेवलप हो जाता है तो वो रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि वो ब्लड अगर आपकी वेजल्स को टच करे तो आपकी पूरी बॉडी में डेवलप हो जाए। जैसे बहुत सारे लोगों को एलर्जीज जब डेवलप होती हैं तो कुछ खाने की वजह से अगर डेवलप हो रही है तो पूरी बॉडी में, आपने देखा, द्रफर से बन जाते हैं और वो कोई भी एंटीहिस्टामिन लेने के बाद चले जाते हैं। खासतौर पे सी फूड आइटम से लोगों को बहुत होते हैं, वो ओवरऑल ब्लड का रिएक्शन होता है। लेकिन अगर आप टॉपिकली कुछ लगा रहे हैं तो वो सिर्फ उस एरिया को इन्वॉल्व करेगा, दूसरी जगह को नहीं करेगा। अच्छा, ये पीपीडी क्या है? ये क्या केमिकल है कोई जो जल्दी बीमारियों को बढ़ाता है? बिल्कुल ऐसे। ये पीपीडी बेसिकली बीमारियों को बढ़ाना तो मैं इसे नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके हेयर डाइज में भी यूज़ होता है और जो कि आपकी मेहंदी में भी यूज़ होता है, दोनों में यूज़ होता है। मैंने कहा ना, इसका बेसिक काम क्या है? रंग देना। हाँ। आपके हेयर डाइज में उसका इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि अच्छे से अच्छा कलर आ सके जो आपको चाहिए, चाहे वो बाद में आपको कितना ही नुकसान दे दे। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को हेयर डाई से एलर्जी हो जाती है, खासतौर पे हम लोग उन्हें लिख के देते हैं कि आपने पीपीडी फ्री हेयर डाई यूज़ करना है, ठीक है? उसका रीज़न ये होता है कि बेसिक जो एलर्जेंस होते हैं वो होते ही पीपीडी में। सो वो डाई में मौजूद होता है, इधर वो आपकी मेहंदी की डाई हो, जो ऑब्वियसली हम उसे डाई कहेंगे, या फिर आपका हेयर डाई हो। कलर देने वाली कोई भी चीज होगी उसमें पीपीडी मौजूद होगा, वो आपको रिएक्शन करवा सकता है। अच्छा, सैलून्स पे अभी आप हाइड्रा फेशियल की बात कर रही थी। हाइड्रा फेशियल मेरे ख्याल से एक माहिर डॉक्टर या फिर स्किन स्पेशलिस्ट जो है, ये उसकी स्पेशलिटी है, ये उसका काम है कि उसने करना है, राइट? अच्छा, सैलून्स पे आप चले जाएं, वो खुद आपको ऑफर कर रही होती हैं कि भाई हमने, हमारे पैकेजेस आए हुए हैं और हम हाइड्रा फेशियल आपका, भाई आपको क्या पता है कि हाइड्रा फेशियल किस बला का नाम है, क्या चीज है, इसमें क्या यूज होना है? आपने तो हाथों से ही करना है, वो तो बाकायदा एक प्रोसीजर है ना। देखिए, हाइड्रा फेशियल एक मेडिकल ग्रेडेड फेशियल है। इसको हम देखिए, सैलून फेशियल हम नहीं करते, हम अपने पास किसी भी किस्म की ऐसी चीज नहीं रखते, पॉलिशर्स, ब्लीच, कोई भी, या फिर कोई मसाजर या कोई स्क्रबर्स, इस तरह की चीजें हम नहीं रखते। अच्छा। उसका रीजन ये है कि हाइड्रा फेशियल का मतलब क्या है? आपकी डीप क्लिनजिंग होना, हाइड्रेशन देना। हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा का मतलब ही क्या है? हाइड्रेशन प्रोवाइड करने वाली चीज, और फेशियल का मतलब आपके फेशियल एरिया को, ठीक है? तो हाइड्रेशन जो चीज़ देगी, जो क्लिनजिंग प्रॉपरली आपकी चेहरे की कर सकेगी, और उसके बाद उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं? नायासिन यूज़ हो रहा है, सैलिसाइलिक यूज़ हो रहा है, ग्लाइकोलिक यूज़ हो रहा है, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ हो रहा है, विटामिन सी यूज़ हो रहा है।
किस को मैं आप मतलब सैलून्स वालों को चैलेंज तो नहीं करती, बट मैं फिर भी ये बात ज़रूर कहूँगी कि क्या आप लोगों को इसकी एक्चुअल मीनिंग भी पता है? क्या आप लोगों को ये पता है कि किस पेशेंट के लिए, हमारा वो पेशेंट होगा, आपका क्लाइंट है डेफिनेटली सैलून्स वालों का, किसके लिए आपने कौन सा सीरम यूज़ करना है, कौन सा ग्लाइकोलिक, नायासिन, सैलिसाइलिक, हाइलुरोनिक किस पेशेंट के लिए सुइटेबल है, कौन सा स्टेप हमने किस पेशेंट के लिए करना है, किसके लिए नहीं करना। एक्नी से भरा हुआ फेस है, ठीक है, आप ऑफर कर रहे हैं अपने पैकेजेस में, पेशेंट अट्रैक्ट हो जाता है, आपका क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ जी इनके पास हाइड्रा फेशियल भी है, हम क्यों जाके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास महंगा महंगा हाइड्रा फेशियल करवाएं, हम इनसे करवाते हैं। आप ये देखें उनको कोई उनके जो बॉटल्स होती हैं जिनमें सिरम्स रखे होते हैं, मैं इसको मतलब चेक भी कर चुकी हूँ 2-3 जगह पे, उसमें पानी के अलावा कुछ नहीं होता, रोज़ वाटर के अलावा कुछ नहीं होता, कोई सिरम उसमें वो नहीं डालते। हाँ। और उन्हें नहीं पता कि एक्नी वाले फेस पर हमें हाइड्रा फेशियल करना भी है कि नहीं करना। मुख्तलिफ क्रीमें लगा लगा के बार बार वॉश करके वो वक्ती तौर पे स्किन ज़ाहिर है आप तो 2 से 3 दफ़ा मुंह धोएं तो आपका एग्जैक्टली मुंह चमक जाता है आपका, ठीक है। आप सिंपली बेसन लें और बेसन में आप रोज़ वाटर मिक्स करें और उसे आप अपने फेस पे लगा लें। 15 मिनट्स के बाद उसे दोबारा रोज़ वाटर से, क्योंकि वो सूख जाता है, रोज़ वाटर से उसे गीला करें, ड्राई करें और हल्का हल्का सा उसे अपने फेस पे मसाज करें। आप बिलीव करें मदीहा, इससे जो आपके फेस के ऊपर शाइन आएगी, चमक आएगी, वो किसी फेशियल से नहीं आ सकती। ये मैं आपको एक घरेलू टोटका इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको बेसन से एलर्जी नहीं है तो आप ये देखें कि बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके फेस को, इवन रमज़ान में मैंने एक्सपीरियंस किया, लाइक अफ्तारी क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ, तो रमज़ान में यूजुअली जब हम वो पकौड़ों का मिक्सचर या किसी चीज़ वो मिक्सचर तैयार करते हैं ना, तो सीधा हाथ यूज़ होता है ज़्यादातर, और मेरे दोनों हाथों में कंपैरेटिवली डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि मैं पूरे रमज़ान मैंने इस हाथ से अच्छे से बेसन के पकौड़े बनाए और मेरे इस हाथ के कलर में इस हाथ से डिफरेंस आ गया। लिटरली ये मैं आपको बता रही हूँ। सो इंग्रेडिएंट जो आपको आपके किचन में अवेलेबल है, इतने सारे टोटकाज में बताती हूँ, आपके प्रोग्राम में भी इतने सारे टोटकाज मैंने बताए। बेहतर है कि अपनी स्किन को एक्सपेरिमेंट के हवाले करने के खुद अपने घर में ये टोटकाज कर लें, ठीक है। और हाइड्रा फेशियल किसी भी सैलून की डोमेन नहीं हो सकता अंटिल अनलेस के मैं घर आके शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने हाइड्रा फेशियल नहीं करवा लिया, वरना तो फिर शायद क्योंकि नॉर्मल फेशियल चले ठीक है, फिर भी उनकी अपनी वो एक स्पेशलिटी है, ठीक है, वो उसे करते होंगे, अच्छे से करते हैं। मैंने भी करवाए डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं करवाए, मैंने भी करवाए। लेकिन हाइड्रा फेशियल से अगर आपकी स्किन पे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, इवन आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है ओवर, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मेकअप के बाद बहुत ज़्यादा रफ लगने लगी है, इन सब चीज़ों के लिए मंथली आप हाइड्रा फेशियल लें, लेकिन किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, किसी क्वालिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाके, सैलून्स जाके ना करवाएं। उनको उनका काम करने दें, बेहतर है कि वो अपना काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हेयर डाई वाली जो एलर्जी है ये मैं तो भुगत चुकी हूँ, मुझे पता है, और इतनी बुरे तरीके से कि अब वो एलर्जी पता नहीं क्यों, शायद एक फोबिया भी हो जाता है इंसान को, एक खौफ आपके अंदर जब बैठ जाता है तो फिर बार बार उस चीज़ का अटैक होता है। तो अल्लाह ना करे, वैसे अभी तो अरसा हो गया, मुझे हेयर डाई से एलर्जी हुई थी। अच्छा। इतनी बुरी एलर्जी हुई थी, तो क्या मेहंदी से भी उसी तरह वो सांस आपको क्या हुआ था उस एलर्जी में, क्या सिम्टम्स आए थे आपको? उसमें फेस पूरा, ये सारा सर तो मेरा ऐसे हो गया था ना कि मुझे लगता नहीं था, मैं हाथ लगाती थी कि मेरा अपना सर है ना, इतना सुन हो गया था, डिस्बैलेंस, स्वेलिंग और फेस पे भी स्वेलिंग थी, मेरा सर हो गया था। हाँ, बिकॉज रिएक्शन जो है वो मेहंदी का भी इससे भी खतरनाक हो सकता है, बहुत अजियतनाक ऐसे ही है। लेकिन आपने फिर वो सेम डाई यूज किया दोबारा? नो, नेवर। हाँ, कभी यूज नहीं किया। उसका तरीका यही होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मेडिकेटेड डाइज अब आ गए हैं जो ये पीपीडी फ्री होते हैं। उनसे ये होता है जो लोग एलर्जिक होते हैं बहुत ज़्यादा, या जिनको डाई से 1-2 दफ़ा एलर्जी, कुछ लोगों को रैशेज हो जाते हैं, कुछ को आपकी तरह का सिवियर रिएक्शन आ जाता है कि इवन बहुत सारे लोग सांस भी नहीं ले पाते, फेस पे भी, हाँ, बिल्कुल फेस स्वेल हो जाता है, सांस नहीं लिया जाता, आपको घुटन महसूस होती है, इतना सिवियर भी रिएक्शन होता है। सो अगर आपको कभी भी किसी भी मेहंदी से या किसी भी कलर डाई से इस तरह का रिएक्शन हो तो दोबारा आपने सबसे पहले वो डाई यूज़ नहीं करनी। दूसरे नंबर पर आपने ज़रूर उसी वक्त कोई ना कोई एंटी हिस्टामिन ले लेनी है। एंटी हिस्टामिन यानी कि एंटी एलर्जिक टैबलेट जो ओवर द काउंटर मौजूद होती हैं, बहुत इजीली सबको ही नाम पता है, रिजिक्स ले लें, ज़ारटेक ले लें, सॉफ्टिन ले लें, बहुत सारी अवेलेबल है। इमीडिएटली वो एक टैबलेट ले लें ताकि आपको उसका रिएक्शन कम से कम तरीन हो, और फिर जैसे जितनी जल्दी हो सके उसमें मेडिकल सीख ले लें आप, जितनी जल्दी हो सकता है। दूसरे नंबर पे बात ये है कि जिस डाई से आपको एलर्जी हुई है वो यूज़ नहीं करनी, तो अब क्या यूज़ करें? मेडिकेटेड ऐसी 2-3 डाइज अवेलेबल हैं जो हम अपने उन पेशेंट्स को देते हैं जिन्हें इस तरह की एलर्जी डेवलप हो जाती है।
मेहंदी से होने वाला रिएक्शन भी मदीहा इतना ही खतरनाक होता है और इससे भी ज़्यादा सिवियर हो सकता है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। क्योंकि रिएक्शन कोई भी हो आपको लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। हम अपने बच्चों को मेहंदियां लगवाते हैं, छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटी बच्चियों को रहा नहीं जाता ना, लाइक मैं खुद भी कहीं ना कहीं यही काम कर रही होती हूँ वैसे, रहा नहीं जाता हमसे, लेकिन थोड़ी सी एहतियात से अगर करें तो अपना शौक पूरा कर सकते हैं। उनके बच्चे बहुत प्यारे अच्छे लगे ना। और मेहंदी क्योंकि मैंने बताया कि पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है मेहंदी, तो मेरा दिल चाहता है कि सबके हाथों पे मेहंदी लगी हो ना, तो लगाएं, बिल्कुल लगाएं, शौक है, एक अच्छी चीज़ है, लाइक हमें अच्छी लगती है, कोई इसमें ऐसा हर्ज भी नहीं है, लेकिन चेक करके लगाएं, थोड़े से एहतियात से लगाएं ताकि आप खुद भी किसी मुश्किल का शिकार ना हो और आपकी फैमिली भी परेशान ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल आपके आने के लिए।